پس پردہ سفارتکاری اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بیانبازی، یہ دونوں کام جاری ہیں۔ چین نے اقوام متحدہ میں امریکہ کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ کیا بیجنگ میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی؟ کیا چین نے بغیر جنگ کے امریکہ کو بیک فٹ پر دھکیل دیا؟ اور کیا دنیا ایک نئی سپر پاور بارگین دیکھ رہی ہے؟ چین نے ایسا کیا کیا کہ امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر پیچھے ہٹنا پڑ گیا؟ تائیوان کے معاملے پر امریکہ نے اپنے دیرینہ موقف سے پیچھے ہٹنے کے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، پس پردہ سفارتکاری اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بیان بازی، یہ دونوں کام جاری ہیں، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ دورہ چین کے بعد ایران کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بریک تھرو کا اعلان کریں گے، آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے گا اور چین اس میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ لیکن خبر اب یہ آ رہی ہے، چین نے اقوام متحدہ میں امریکہ کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ آبِ ہرمز پر امریکی قرارداد کو نامناسب قرار دے کر بیجنگ نے واشنگٹن کو ایک کھلا پیغام دے دیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہرمز کے بدلے امریکہ تائیوان پر پیچھے آپ کو ہٹتا ہوا نظر آئے گا؟ وہ امریکہ جو برسوں سے تائیوان کی حمایت کرتا رہا، اب ٹرمپ صاف کہہ رہے ہیں کہ تائیوان آزادی کا ابھی اعلان مت کرے، اور سب سے بڑی بات کہ $14 ارب کا اسلحہ پیکج بھی روک دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بیجنگ میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی؟ کیا چین نے بغیر جنگ کے امریکہ کو بیک فٹ پر دھکیل دیا؟ اور کیا دنیا ایک نئی سپر پاور بارگین دیکھ رہی ہے؟ اور دوستو، پروگرام کا آغاز کریں گے اس پہلے سوال کے جواب سے۔ سلامتی کونسل میں کیا ہوا؟ سلامتی کونسل میں ایران جنگ پر بحث کے دوران ایرانی اور امریکی مندوب ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے مندوب ہیں مائک والٹز، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کے دورہ بیجنگ کے بعد چین نے ایران سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ اب نیریٹو بلڈنگ تو ہوگی، اب آپ ایک دورہ کر کے آئے، 2 دن آپ نے چین میں گزارے، اور آپ اسے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے حاصل کریں گے، استعمال کریں گے، اور آپ وہ کام یہ کر رہے ہیں۔ لیکن نیریٹو بلڈنگ ہے کیا؟ چین ایران کے جوہری ہتھیار نہ بنائے اور آبِ ہرمز پر ٹول ٹیکس نہ لگانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ جواب میں ایران کے مستقل مندوب ہیں امیر سعید اروانی، انہوں نے آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے والی قوتیں بھی آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال اور اس کی معاشی جو اثرات ہیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ اور چین نے دوستو دوسری طرف امریکی قرارداد پر ایک بار پھر اعتراض کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر فو کونگ نے کہا کہ آبِ ہرمز سے متعلق سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد کا متن اور وقت مناسب نہیں۔ دونوں فریقین کو سنجیدہ اور نیک نیتی پر مبنی مذاکرات پر آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ایک طرف پیچھے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اسلحہ جو ڈیل ہوئی اس سے بھی پیچھے ہٹنے کا مدعا اٹھایا گیا، اور ایک طرف ایران کے خلاف چائنا سے متعلق جو پوزیشن امریکہ یہ لے رہا ہے کہ بھئی دیکھیں دورہ کامیاب ہو گیا ہے، اور ہمارے اس دورے کی وجہ سے جو ہم نے چین سے بات کی ہے، ہم نے ان کو بوئنگ جہاز دینے، ہماری زبردست ڈیل ان کے ساتھ طے پا گئی، تو اس کے نتیجے میں اب چائنا اپنے فائدے کو دیکھے گا اور وہ ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ دوستو، چین نے ایسا کیا کیا کہ امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر پیچھے ہٹنا پڑ گیا؟ اگر امریکی سفیر نے چین کے بیک فٹ پر جانے کی بات کی تو ادھر امریکہ بھی تائیوان کے معاملے پر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، یعنی معاملہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر طے کیا جا رہا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ تائیوان کی حمایت کرنے والے امریکہ نے دورہ چین پر صاف صاف یہ کہا کہ تائیوان آزادی کا اعلان نہ کرے، وہ چین کے ساتھ ہے اور رہے گا۔ اس پر تائیوان کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا کہ چین ایک آزادی اور خود مختار ملک ہے، اور تائیوان بھی اپنی آزادی اور خود مختاری کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ چین کو کوئی حق نہیں کہ وہ تائیوان کو ڈکٹیٹ کرے۔ اور دوستو، اس پر تائیوان کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا کہ چین ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، تو تائیوان بھی اپنی آزادی اور خود مختاری کا حق رکھتا ہے۔ چین کو کوئی حق نہیں کہ وہ تائیوان کو ڈکٹیٹ کرے۔ دوستو، تائیوان کے معاملے پر امریکہ نے اپنے دیرینہ موقف سے پیچھے ہٹنے کے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے تائیوان کے لیے $14 ارب کی اسلحہ جو پیکج کا جو اعلان کیا گیا تھا، اب اس پیکج اور اس ڈیل کے اوپر تمام فیصلے روک دیے۔ یہ وہ پیکج ہے جس میں جدید میزائل ایئر ڈیفنس سسٹمز شامل تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ اس وقت اور بھی حساس ہو گیا جب ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے تفصیلی گفتگو کی، اور اس گفتگو میں واضح طور پر تائیوان کو ایک بڑے تنازع کے طور پر دیکھا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکی
जो क़यादत है वो किसी ऐसे जंगी बुरहान में दाखिल हो जो हज़ारों मील दूर शुरू हो। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस के कई अरकान समझते हैं कि ताइवान को मजबूत फौजी हमायत देना ज़रूरी है ताकि चीन को रोका जा सके। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका अपनी पुरानी पॉलिसी बदल रहा है? अब ये पुरानी पॉलिसी क्या थी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 1982 की पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका ने चीन से वादा किया कि वो ताइवान के असलहा मामलात पर मुशावरत नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप ने इसको मौजूदा दौर के लिए गैर मौसर करार दे दिया। ताइवान की हुकूमत, जिसकी क़यादत लाई चिंग टी कर रहे हैं, अब ये नाम आगे पीछे हो जाए तो मैं आपसे बहुत सारी माजरत चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी अपनी जुबान नहीं है तो गलती की गुंजाइश मौजूद है। दोस्तों, इस सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से देख रही थी जो क़यादत, जिसका मैंने नाम लिया। जापान और जनूबी कोरिया जैसे ही इत्तेहादी भी आपको इस वक्त परेशान नजर आएंगे कि खित्ते में ताकत का तवाजुन कहीं बिगड़ ना जाए। अच्छा, ये परेशान तो हैं, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा कि ताकत का तवाजुन बिगड़ नहीं रहा बल्कि हिल गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका की पॉलिसी में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया इस वक्त एक नए सफारती इम्तिहान के दहाने पर खड़ी है। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये फैसला अमन की तरफ जाएगा या कशीदगी की तरफ? लेकिन दोस्तों, जो कार्ड्स हैं वो आपके सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम कार्ड्स चाइना के हवाले किए। चाइना ने अपनी सिचुएशन जो है बोइंग तैयारों की, अगर इनको खेप और ये ऑर्डर मिल जाता है, जो इनको अमेरिकन को अगर मिल जाता है, तो यकीनन अमेरिकन अपने फ़ायदे को देखेंगे। देखें, ये जो जंगे है ना, किसी की आपने हाकमियत को चैलेंज करना है, आप हमला करें। ईरान चाइना के मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो खड़ा है। मिडल ईस्ट उसको तबाह नहीं कर सका, इसराइल तबाह नहीं कर सका, अमेरिका तबाह नहीं कर सका। और अगर ईरान को आप तबाह नहीं कर सके तो फिर चाइना को आप कैसे तबाह करेंगे? और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगले 2-3 रोज़ के अंदर एक इंतहाई अहम दौरा भी होने जा रहा है। इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो पुतिन का दौरा चीन होगा और फिर इसमें जो मुलाकात होगी, एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस वक्त तख्लीक पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस खित्ते के अंदर अपनी पोजीशन जो है उसे इतने 1000 किलोमीटर दूर बैठकर वो नहीं चाहेगा कि ताइवान के मामले में चाइना के साथ लड़ाई की जाए। दूसरी तरफ अगर आप ऑर्डर्स दे रहे हैं, ले रहे हैं और वहाँ से अपने मईशत का जो सबसे बड़ा हथियार है वो इस्तेमाल किया, तो फिर आप इस पूरे महाज को इसी तरह छोड़ देंगे, ये आगे मामलात नहीं बढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। जब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि उसने जंग के दौरान अमारात का दौरा किया, तब से ईरान का रवैया जारहाना हो गया है। ब्रिक्स इजलास में भी आपको इसी किस्म का एग्रेशन नजर आया। अरागची जो है, अब्बास अरागची, उन्होंने दो टोक जवाब दिया, खूब लताड़ा है अमाराती नुमाइंदे को, और सामने बैठे हुए एक नुमाइंदे को ये तमाम बातें कहना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी आसान नहीं होती। ये सिर्फ मामला बयानबाजी तक नहीं रुकेगा, बल्कि एक कदम आगे जाकर ईरान अमारात के ऊपर हमला भी कर सकता है। दोस्तों, अमाराती हुकाम ने तरदीद की कि सोनी वज़ीर-ए-आज़म जंग के दौरान अमारात नहीं आए, तो अगले दिन होता क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म जो नेतन्याहू है उसने बयान दे दिया कि मेरे साथ इसराइली आर्मी चीफ भी था। अब इस सूरत हाल में ईरान ने अमारात को अपना बाज़ाब्ता दुश्मन कहना शुरू कर दिया, और जो उसके ऊपर हमलावर होगा वो दोस्तों में से तो नहीं हो सकता। और ईरानी बयानात पर रद्द-ए-अमल में मुत्तहिदा अरब अमारात ने ब्रिक्स इजलास में ईरान की जानिब से यूएई पर हमलों को जायज़ करार देने से मुतल्लिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़, अब ये यूएई जो है ना, ये समझ क्यों नहीं रहा? अगर एक ऐसे दुश्मन जो मुसलमानों का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, आप उसके साथ इत्तेहाद करके मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला करते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी नेशनल चॉइस होगी या फर्द वाहिद की चॉइस होगी, लेकिन आप फिर ऐलान कर दें कि ईरान आज से हमारा दुश्मन है, कर ले मुकाबला। लेकिन ये जो मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार यहाँ पर भी अदा किया जा रहा है, इसके ऊपर ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा। दोस्तों, ईरान ने मिडल ईस्ट को ना कंट्रोल किया, ये गले से पकड़ा हुआ है। अमेरिका की इकोनॉमी को ऐसे पकड़ लिया, दुनिया की इकोनॉमी उसके अब हाथ में है। तो आप क्या ईरान से हमला करके या ऐसे बयानात देकर या किसी को अपने मुल्क में खुफिया तौर पर दावत देकर क्या आप उसे पीछे कर सकते हैं? ये अमारात के लिए इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अमारात के वज़ीर मुमलिकत ने हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा की असूली जो मौक़िफ़ है या उनकी करारदादें हैं, इसकी खिलाफ वर्जी करार दिया, और ये कहा कि वो किसी भी धमकी को कबूल नहीं करते और ईरान की जानिब से किसी भी खतरे का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे किसी सूरत भी नहीं हटेंगे। दोस्तों, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकन की कमज़ोरी पर एक बार फिर हाथ डालते हुए कहा, देखें, ये जो हाथ डालने वाली बात है ना, ये इसी तरह है, क्योंकि अमेरिकन की कमज़ोरियाँ पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। तो अब जो ईरानी क़यादत है वो इन कमज़ोरियों को पकड़ कर, हाथ डालकर अब एक रिएक्शन दे रही है कि अमेरिकन की असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमेरिका का कर्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान जंग के अमेरिका पर
पड़ने वाले मनफी मुआशी असरात से मुतल्लिक तंज करते हुए सोशल मीडिया पर अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर बढ़ती हुई शरह मुनाफा के आदादोशुमार शेयर कर दिए। अब्बास अरागची ने कहा कि अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए खर्चात बर्दाश्त करने होंगे। अमरीका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट्स की बात ना भी की जाए तो असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीका के कर्ज में इजाफा होगा और जो इसकी मॉर्गेज की जो शरह बढ़ती जाएगी। अब ये मॉर्गेज जो है वेस्ट के अंदर एक परमानेंट फीचर है और जिस तरह से इसकी जो प्रोपोर्शन इसमें इजाफा हो रहा है, ऑब्वियसली ये बात बाइस तकलीफ है अमेरिकन के लिए। लेकिन आपका जो दुश्मन है और जो मुस्लिम दुनिया जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं, वो अब आपकी एक एक जो कमज़ोरी है उसे दुनिया के सामने, ख़ास तौर पे अमेरिकन अवाम के सामने रख रहे हैं। उनको पता चले कि उनके ऊपर किस किस्म की क़यादत इस वक्त मुसल्लत है। और दोस्तों, मैं आपको अमेरिका के हवाले से एक खबर ये भी दे दूं कि जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है डोनाल्ड ट्रंप को, वहीं पर अब एक नया मामला इनके सामने चैलेंज बनकर आ गया है और ये है ईरान जंग के बाद अमेरिका में ईरानी हैकर्स। और ईरानी हैकर से अमेरिका अब तंग आ चुका है जिन्होंने उसके गैस स्टेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया। मीडिया के मुताबिक अमेरिका की मुतादिद रियासतों में गैस स्टेशन के ईंधन जखीरा करने वाले टैंक्स की निगरानी करने वाले सिस्टम्स हैक होने का इंकशाफ हुआ, जबकि अमरीकी हुकाम को शुबा है कि साइबर हमले के पीछे ईरानी हैकर्स हो सकते हैं। अमरीकी नशियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने ऐसे ऑटोमेटिक टैंक गेज ATG सिस्टम्स को निशाना बनाया जो इंटरनेट से मुंसलिक थे और पासवर्ड से महफूज नहीं थे। हुकाम ये बताते हैं कि हैकर्स बाज़ मकामात पर टैंक्स की स्क्रीन्स पर दिखाई जाने वाली रीडिंग्स में तब्दीली करने में कामयाब हुए, ताहम ईंधन की असल मिकदार मुतासिर नहीं हुई और ना ही किसी किस्म का जिस्मानी नुकसान हुआ और ना ही कोई धमाका जो है वो रिपोर्ट हुआ। इसके बावजूद माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर हैकर्स ऐसे सिस्टम तक रसाई बरकरार रखेंगे और कामयाब हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में गैस लीक जैसे खतरनाक मसाइल को छुपा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो हैकिंग है ना, धमाका नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हैकर्स सिस्टम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए तो कल को अगर सिस्टम से कोई गैस अखराज होता है तो इसको छुपाया जा सकता है। दोस्तों, ज़रा ही बताते हैं कि ईरान इसलिए अहम मुश्तबा मुल्क समझा जा रहा है क्योंकि माजी में भी ईरानी हैकर्स अमरीकी तेल, गैस और पानी की जितनी भी तरसील थी, जो निज़ाम था, इसको निशाना बनाते रहे। तमाम अमरीकी हुकाम ने वाजे किया कि हैकर्स ने बहुत कम डिजिटल शवाहिद छोड़े हैं जिसके बायस ईरान के मुलविस होने की हतमी तस्दीक करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ कशीदगी और जंगी सूरत हाल इस वक्त जारी है। तो ये भी एक तरह से हमला, अमेरिकन ऑब्वियसली इसको हर एंगल से देख रहे हैं, लेकिन ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं इनकी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि ये हमला कहाँ से हुआ। दोस्तों, मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ, और ईरान ने आबने हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए एक नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। इससे पहले भी ये बातें होती रही हैं कि हम एक नया मैकेनिज़्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन चाइना के दौरे के बाद चाइना ने ऑब्वियसली ईरान के ऊपर एक प्रेशर था, पैगाम उनको बकौल अमेरिकन के भेजा कि आप ये जो नया टैक्स सिस्टम लेकर आ रहे हैं इससे पीछे हट जाएं। और ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह जी इब्राहिम अजीजी साहब वो ये कहते हैं कि आबने हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया गया, जिसका जल्द ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तजारती जहाज मुस्तफ़ीद होंगे और मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फीस ली जाएगी और ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। देखिए, अब ईरान ने जो ज़बरदस्त काम ये किया कि ठीक है, जो जहाज़ आ रहे हैं अगर हम उनसे पैसा नहीं लेते, यानी वो ये कह रहे थे अमेरिकन कि यार ये तो एक जगह टैक्स है और आप ये पैसा क्यों ले रहे हैं, और ये कुदरती एक रास्ता है जिस पे किसी का इंटरनेशनल वाटर्स है, ईरान का हक नहीं है। ईरान ने कहा कि भाई हम एक मैकेनिज्म यहाँ पे बना रहे हैं और एक महफूज रास्ता। एक तरफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी, ठीक है, माइंस, जिसके लिए 40 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया गया कि हम आ रहे हैं और हम इसको यहाँ से हटाएंगे। और बरतानिया उसकी क़यादत कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी उसके अंदर आपको नज़र आता है, यूएई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ खड़े हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम उनका वहाँ पे मौजूद है। तो इन्होंने एक मैकेनिज्म कैसे तख्लीक किया कि माइंस बिछा दी। अब जो रास्ता सेफ़ पैसेज है ना, जब भी इस जंग के दौरान किसी भी जहाज़ को सेफ़ पैसेज देने की बात हो रही थी तो उसको ये कहा गया कि हमारे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपको जहाज़ की मूवमेंट का ख्याल रखना है और हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि कौन सा रास्ता आपने इख्तियार करना है। तो इस तनाजुर में एक तरफ माइंस होंगी, दूसरी तरफ ईरान होगा और बीच में वो रास्ता मैकेनिज्म जिसकी अब ईरान फीस जो है वो इनसे हासिल करेगा। और दोस्तों, इस जंग के माहौल में जहाँ पे
चाइना ताइवान के मामले के ऊपर जवाब दे रहा है और ईरान को पीछे हटने की जो एक स्पेकुलेशन की जा रही है, वहीं पर ईरानियंस ने भी एक जवाब दिया है और ये डायरेक्ट अमेरिका का जवाब है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर कहते हैं कि हालिया इलाकाई सूरत हाल के बाद ईरान का सब्र हमेशा बरकरार नहीं रहेगा, और उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा कि ईरान ने बरसों तक इन ममालिक को दोस्त और बरादर समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी का दाव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। हालिया जंग के दौरान सेंटकॉम के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्दअमल में तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन याद रखो कि आइंदा हम इतने तहम्मुल से तुम्हारे साथ पेश नहीं आएंगे। देखिए, यही तो वो जंग है कि यूएई अगर अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ किराए पर दे देगा इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर इसका एक रिएक्शन आएगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर हमला ना करे, जहां से उनके ऊपर हमला हो रहा था। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर कोई सरजमीन, कोई ठिकाना इस्तेमाल होगा तो वहां पर हमला किया जाएगा, और ईरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने तमाम दुश्मनों को ये बता दिया था। दोस्तों, एक और इसमें डेवलपमेंट ये हुई है, और जो तेहरान की म्यूनिसिपल हुकूमत है, जो अमेरिकन हमलों के नतीजे में और इसराइली हमलों के नतीजे में जो नुकसान हुआ, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और अदाद शुमार जी अब जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शहर में कम अज़ कम 650 मकामात पर हमले के असरात रिकॉर्ड किए गए। हमलों में कम अज़ कम 1260 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ये सिर्फ मैं आपको तेहरान की बात बता रहा हूँ। हमलों के नतीजे में तकरीबन 51,000 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि 10,733 गाड़ियाँ और 754 मोटरसाइकिल्स भी तबाह हुए। मुतासर गाड़ियों में तकरीबन 150 टैक्सीज भी शामिल हैं। ये बात रिकॉर्ड पर रहेगी। दोस्तों, ये जो मुस्लिम दुनिया ना, इन्हें ईरान के साथ एक नेशनल इत्तेहाद था, इन्हें खड़ा होना चाहिए था, कलमे का रिश्ता, किताब का रिश्ता, लेकिन ऐसा हमने यूएई के मामले में नहीं देखा। और अरब दुनिया के अंदर ना आपको ऐसी कई एग्जांपल्स मिलेंगी जहां पर मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ जो है वो जंग लड़ता है। ईरान इराक जंग हुई, कुवैत जंग हुई, ये सब क्या था? वो कुव्वतें जो इनको कंट्रोल करती हैं वो आपस में मुसलमानों को लड़ा रही हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएई ईरान के साथ खड़ा होगा, कतर ईरान के साथ खड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन जो मसीही पेशवा खुलकर इस जंग के अंदर ईरान के साथ खड़े हुए, और वो ट्रंप के साथ खड़े नहीं हुए। ईरानी सदर मसूद पशकान ने हालिया अमरीकी फौजी हमलों के खिलाफ अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये सुने ज़रा वो क्या कह रहे हैं कि पॉप लियो का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पशकान ने कहा कि पॉप लियो ने इन हमलों के खिलाफ इखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं था। देखिए, ये इंसानियत का भी तो कोई ताल्लुक होता है, असूलों की भी तो कोई बात होती है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, वहाँ पर गैर इंसानी जो सलूक किया जाता है, इसके खिलाफ दुनिया में आवाज़ उठेगी और लोग उठाते हैं। और इसी चीज़ को मसूद पशकान ने जो है इसका हवाला दिया। मैं आपको आखिर में लिबनान के हवाले से भी अपडेट दोस्तों ये दे दूं। और सूरत हाल ये है कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान टॉमी बेगोर्ड ने कहा कि अमरीका की सालसी में होने वाले 2 रोज़ा इंतहाई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के बाद इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की जो तोसी है वो कर दी गई है। और उनके मुताबिक महकमा खारजा 2 और 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा, जबकि 29 मई को पेंटागन में इसराइल और लिबनानी फ़ौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।